Hello and welcome to this strategy video for the chemistry examination for ICSE class 10 students, and with me is Smita ma'am, who is going to give us the ज्ञान on how to approach chemistry कि अगले 2-2.5 दिन में किस तरह की रिवीजन करनी है और किस तरह से एग्जाम को एग्जामिनेशन हॉल में पेपर लिखना है। तो स्मिता मैम, सबसे पहली बात तो ये कि 2-2.5 दिन का टाइम है एंड देयर आर लॉट ऑफ पॉट होल्स एज फार एज द केमिस्ट्री एग्जामिनेशन इज कंसर्न। सो किस तरह के गड्ढे हैं जिनसे कि बच्चों को बच के रहना चाहिए? सबसे पहले तो नमस्कार। So after physics paper, there is a great weekend for the students, and after the weekend we have the chemistry paper. So as you said that there are the 2.5 days for chemistry, and I think it's more than enough for chemistry. Okay. Because chemistry syllabus, एक तरफ कहूँ तो बहुत easy है chemistry का syllabus. On the other hand, it is not easy to get the marks in chemistry paper. Now, why I am saying? Because in chemistry paper, there are lots of do's and don'ts. Lots of practices required. Lots of observation-based questions are there. Yes. Lots of keyword or operative words are there. If these keywords and operative words are missing, then you are not able to get the marks. So there are lot many things which students need to follow before the preparation of the chemistry examination. First of all, I just want to say to each and every student that first of all, read your syllabus 2023 thoroughly. Yes. Again, reduce 2023 syllabus from the website, council website only. Correct. And the best way of the revision is revise from the सिलेबस ओनली. सो सिलेबस में यस फर्स्ट चैप्टर आपको पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है और ऊपर लिखा है कि पीरियोडिक ट्रेंड्स को रिवाइज करना है. तो रिवाइज ऑल द पीरियोडिक ट्रेंड्स, डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो मेंशन है. तो उन सारे वर्ड्स को, उनका मीनिंग, उनका डेफिनेशन को रिवाइज करिए. दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट एवरीवन हैज टू डू, राइट? Now, how to prepare in 2.5 days. So my strategy is, now first you revise at least 2 question paper from the previous board examination. Now, why I am saying so? Because you can have an idea what kind of preparation is required, what kind of question I have to prepare. तो एकदम से आप चैप्टर लेके बैठ जाओगे सारे के सारे, तो आपको लगेगा अरे 12 चैप्टर हैं, टाइम कम है, 24 घंटे भी नहीं है मेरे पास में ढंग से, मैं कैसे रिवाइज करूंगा? वहां आपको सिर्फ डिप्रेशन शुरू होता है, वहां आपको सिर्फ क्यों शुरू होता है. पहले 2 क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करिए, उनको प्रॉपर सॉल्व करिए, क्वेश्चन पेपर का डिमांड समझिए, स्पेसिमेन पेपर को करिए, उसके पैटर्न को समझिए, और उसके बाद में पहले दिन कोई 6 चैप्टर को रिवाइज करिए और अगले दिन 6 चैप्टर को रिवाइज करिए. नो, ये जो 6 चैप्टर का बाइफर्केशन है वो आप कैसे करना चाहिए? मोल कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टडी ऑफ कंपाउंड को कोई एक दिन करिए, because they all are interrelated. Study of compounds के 4 chapters are there. So if you revise them together, you can have a better comparative study. Organic chemistry and mole concept both are very scoring topics. So उनको भी उनके साथ में करिए. उसके बाद में नेक्स्ट डे या प्रीवियस डे जो भी आपने day 1 day 2 प्लान किया है, उसमें पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एसिड एंड बेस, ये वाले चैप्टर्स को रिवाइज करिए बिकॉज दे आर ऑल आर इंटरकनेक्टेड. तो वो आपको इस तरीके से रिवाइज करना चाहिए. पेपर से पहले प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है, सेलिना में भी दिया हुआ है, दलाल में भी दिया हुआ है. उसके रिएक्शंस को, उसके ऑब्जर्वेशंस को जरूर रिवाइज करिए. ओके, तो ये तो हो गई जहां तक हाउ टू रिवाइज एंड हाउ टू यूज Saturday and Sunday are concerned. Now, as far as the paper patterns, because this is very different from the 2018-19 ke papers, also it is different from the last year Sem 1 and Sem 2 ka pattern. You have 15 MCQs, then you have 25 marks which are compulsory questions, and then you have a choice in section B. Section B की बात पहले करें तो is there any way the questions are divided, या पूरे questions की एक तरह से खिचड़ी बनी हुई है कि कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है? There is no specific pattern for the division of question paper.
in section B, so there will be 3 different question which carry 3 different numerical from the mole concept. एक क्वेश्चन यदि हम मोल कॉन्सेप्ट की ही बात करें, आपको एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला पर मिलेगा ही मिलेगा. कोई लंबा चौड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल से आपको डाटा दिया होगा, आपको उसको कैलकुलेट करके एम्पिरिकल फॉर्मूला, या थोड़ा ज्यादा नंबर का हुआ 4 मार्क्स का तो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला पूछ लेंगे. अगेन 3 to 4 मार्क्स में ही आपका जो वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें वॉल्यूम्स दिए हुए हैं और उसके ऊपर कैलकुलेशन करना है गैलूजक लॉ के ऊपर, एक वो क्वेश्चन आपको मिलेगा. इसके बाद में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन परसेंटेज कंपोजिशन पर या वेपर डेंसिटी पर हो सकता है. यहीं पर एक क्वेश्चन आपको गैलूजक लॉ या एम्पिरिकल फॉर्मूला या वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन पर हो सकता है. वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला है कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, दैट फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू. ओके. या गैलूजक लॉ का डेफिनेशन देके गैलूजक लॉ को आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. So Smita ma'am, while they are doing this 6 chapters plus 6 chapters on Sunday and Saturday and Sunday, is there a specific approach that they need to adopt while they are preparing for MCQs, और section B के लिए एक अलग approach की जरूरत है? Do they need to think in their mind कि कौन से section के लिए किस तरह का approach मेरे को adopt करना चाहिए? There are 15 marks question MCQs, for the MCQ. Yep. There are 12 chapters. Yep. So each chapter will carry 1 question. अब बचा आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन. ठीक है, आउट ऑफ 15 12 मार्क्स का तो 12 चैप्टर में से हो गया. नाउ 3 मार्क्स क्वेश्चन कुड बी ऑन फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल, फ्रॉम द मेटलर्जी, वो किसी में से भी हो सकता है, एलॉय के ऊपर हो सकता है. तो वो कोई स्पेसिफिक उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है. नाउ इफ वी कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन, जो हमारा सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन है, सेक्शन ए के सेकंड, हाँ, तो उसमें क्या, उसमें क्वेश्चन जो है वो एक आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. तो जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, वहां पर जो स्टडी ऑफ कंपाउंड वाला आपका टॉपिक है, वो स्टडी ऑफ कंपाउंड वाले टॉपिक में आपको लेबोरेटरी प्रिपरेशन का डायग्राम दिया हुआ है. HCl का डायग्राम है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का डायग्राम है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है, हेबर्स प्रोसेस का डायग्राम है. तो वो डायग्राम को आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. उसके ऊपर एक बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा. इसी तरीके से आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन ए में ही IUPAC नेम पर मिलेगा. तो आपको 3 आपको उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, 2 या 3 आपको स्ट्रक्चर दिए होंगे, उनका आपको IUPAC नेम लिखना है. नाउ हियर कैन आई कंटिन्यू? या वो बीच में फ्रीज हो गया था. There was some problem. Okay. Here you need to read the question carefully, whether they ask for the condensed formula or they ask for the structural formula. तो जब मैंने आपको रीडिंग बोला, यहाँ पे मैं एक चीज लेना चाहूंगी, जो फर्स्ट 15 मिनट का टाइम होता है, दैट इज अ रीडिंग टाइम. एक्चुअली वो पूरा महामंत्र है कि आपको 100 मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा. डोंट बी पैनिक एट ऑल कि आपने नंबर ऑफ पेजेस को काउंट किया, ओ 8 पेज का क्वेश्चन पेपर है, 10 पेज का क्वेश्चन पेपर है, और क्वेश्चन पेपर नहीं होगा. क्वेश्चन पेपर इज डिजाइन फॉर अ वेरी वेरी एवरेज स्टूडेंट. उनको ध्यान में रख के 101% बनाया जाता है. ठीक है, जब उनको ध्यान में रख के, और ऑन एन एवरेज यदि आपको पेपर आता है और आप सिर्फ चॉइसेस को नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चॉइसेस को नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो पेपर का पैटर्न है उसको आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप बड़े आराम से 1 घंटा 10 मिनट में पेपर कर पाते हैं. ये मैं तब बात कर रही हूँ जब पिछले साल से पहले एमसीक्यू नहीं आता था. अभी तो 15 नंबर का एमसीक्यू है. तो आप मानो कि आराम से 1-1.25 घंटे में पेपर कर पाते हो. उसके बाद में आपके पास एनफ टाइम है रिवाइज करने के लिए, एनफ टाइम है एक्स्ट्रा चॉइसेस को अटेम्प्ट करने के लिए. तो इसलिए 15 मिनट के रीडिंग टाइम को आप प्रॉपरली यूटिलाइज करो. मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि जब हम क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली नहीं पढ़ते हैं, आपसे पूछा था सोल्यूबल सब्सटेंस या इनसोल्यूबल सब्सटेंस, आपने उसको सोल्यूबल रीड कर लिया. आपने फाउंटेन एक्सपेरिमेंट सुनते से ही आपने क्वेश्चन में दिमाग लगा लिया कि अच्छा अमोनिया आएगा.
आपने पढ़ा ही नहीं, वो एसिड के ऊपर बेस्ड था या एल्कलाई के ऊपर बेस्ड था। तो ये क्या होता है कि आपको क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आते हुए भी। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन एक स्टेप में आपको रीड करने पर लगता है कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं है। बट इफ यू हैव रेड in your classroom, if you have read during the revision time, then it always continue in your conscious mind. तो later on आपको आधा घंटे में 10 मिनट में उसका आंसर ऐसे आता है। तभी पढ़ोगे तो वो फाइल तो कंप्यूटर की हैंग फाइल के जैसे घर जाकर ही खुलती है, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही खुलती है। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें सो दैट द माइंड में बफरिंग ना होते रहे, यू डोंट कीप थिंकिंग कि ये क्या है इसका आंसर। सो इन द रीडिंग टाइम डू यू थिंक दे शुड फर्स्ट सॉल्व ऑल द 15 एमसीक्यूज सो दैट 15 एमसीक्यूज के ऑप्शंस तो वो विद इन 5 मिनट्स लिख के छोड़ दें, और डू यू थिंक सेक्शन बी को देखने की जरूरत है कि इसमें से कौन से क्वेश्चंस मेरे को अटेंड करने चाहिए? नहीं, पहले 15 मिनट में पहले 15 मिनट में they have to read the entire question paper. They can frame the answer in their mind. कर सकते हैं कि पेंसिल से फटाफट से 1 to 15 का आंसर लिख के रफली अपने दिमाग में सोच लिया कि इसका ABCD ये करके होगा। उसके बाद में आपको पहले पूरा सेक्शन बी और सेक्शन ए के बचे हुए क्वेश्चंस को रीड करना है, और सेक्शन बी के क्वेश्चंस भी डिसाइड करने हैं कि विच आर द स्कोरिंग क्वेश्चंस, और ऐसे कौन से क्वेश्चन है वेयर देयर आर द लीस्ट चांसेस ऑफ लूजिंग ऑफ मार्क्स। वो करने के बाद में आप उसको पूरा प्रॉपर को सॉल्व करिए। ओके, तो ये तो हो गई जहां तक 15 मिनट्स का सवाल था। नाउ मेजर हवा रहता है whether they will be able to remember all the formulae. So in the 2 days of revision time, is there something they can do in order to ensure कि कोई भी फॉर्मूला एग्जाम टाइम में 11 से 1 के बीच में ना भूले, या सिर्फ बादाम खाने से चलेगा? नहीं, वो फॉर्मूला तो जो याद हो सकता था वो तो आपकी पूरी आपने पिछली कितनी क्लासेस को अटेंटिवली अटेंड किया है उसी पर डिपेंड करता है। अभी देयर इज नो स्पेशल मैजिक कि अभी कोई एक मैजिक है और उससे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर मैं एक मैजिक जरूर बोलना चाहूंगी, वो ये है कि जब भी आप कोई फॉर्मूला को लिख रहे हैं तो जो क्रिस क्रॉस मेथड से हम फॉर्मूला को चेक करते हैं वैलेंसी के बेस पर, वो वैलेंसी से फॉर्मूला को एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। आपसे क्वेश्चन पूछा है अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखिए, या कहीं पर आप अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख रहे हैं, आपको इंस्टेंटली दिमाग में आता है वो इट्स NH4NO3। बिल्कुल, NH4NO3 को पहले क्रॉस चेक करो, अमोनियम का वैलेंसी कितना है, NO3 का वैलेंसी कितना है, क्रिस क्रॉस मेथड से उसको क्रॉस चेक करो और तब फाइनल करो। हाँ, अभी मैं एकदम से सही हूं कि आंसर जो है वो NH4NO3 ही होगा। ओके, ठीक है। तो ये तो हो गई जहां तक केमिस्ट्री के स्ट्रेटेजी का सवाल है। सो होपफुली स्टूडेंट शुड बी एबल टू मेक गुड यूज ऑफ द 2 days. एज यू सेड 2 दिन का टाइम काफी है फॉर एवरीवन टू रिवाइज, ऑल्सो सॉल्व ए कपल ऑफ टेस्ट पेपर्स, या कोई भी क्वेश्चन बैंक हो जैसे SWS का क्वेश्चन बैंक है, दे कैन हैव अ लुक एट इट चैप्टर वाइज, सो दैट चैप्टर वाइज तैयारी हो जाएगी। यू विल नो एग्जैक्टली अगर किसी चैप्टर में स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, यू विल बी एबल टू एड्रेस दैट, एंड आई होप यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चों को एक तो MCQ को लेकर बहुत हुआ है एक तरीके का, मैं कहाँ से करूं। तो आप कहीं से भी MCQ कर रहे हैं, आप चाहे हमारी साइट से कर रहे हैं, चाहे आप आपके स्कूल में कोई प्रिस्क्राइब बुक दी हुई है उससे कर रहे हैं, ठीक है, आप इंश्योर करिए कि जहां से भी कर रहे हैं वो एक फेथफुल प्लेटफॉर्म है जहां से आप MCQ के आंसर्स को टैली कर रहे हैं, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। क्योंकि यदि आप अपने स्कूल के टीचर के साथ में कर रहे हैं या हमारे साथ में कर रहे हैं, वहां पर जब भी आपको कोई आंसर पे डाउट आ रहा है, यू कैन क्रॉस चेक विद योर टीचर। और एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि वट एवर द आंसर इज गिवन इन द बुक और ऑनलाइन आप MCQ कर रहे हो, आपको कोई आंसर दिया हुआ है और आपको लगता है कि दिस पर्टिकुलर आंसर इज नॉट डिस्कस्ड इन माय क्लासरूम, मेरे टीचर ने नहीं बताया या मेरे हिसाब से नहीं होता है, प्लीज डोंट फील शाय एट ऑल, डिस्कस विद योर टीचर कि मेरे हिसाब से ये आंसर बन रहा है, मैं सोच गलत हूं या ये यहाँ पर ही आंसर गलत दिया हुआ है, ताकि आप गलत चॉइस के साथ में ना जाए। एक और चीज, केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द 2 कंपाउंड्स, ठीक है,
तो जब भी आप दो कंपाउंड के बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, यूज द सिमिलर रिएजेंट, तभी आप उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं. लाइक इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्शियम सल्फेट एंड जिंक सल्फेट, देन यूज द NH4OH. दोनों के लिए सिमिलर रिएजेंट को यूज करिए. एक उसके साथ में रिएक्शन देता है, एक उसके साथ में रिएक्शन नहीं देता है, तभी तो कंपैरिजन होगा. यदि आपने एक जगह NaOH ले लिया, एक जगह NH4OH ले लिया, जब दोनों रिएजेंट ही आपने डिफरेंट लिए हैं, तो फिर कंपैरिजन किस बात का? तो कंपैरिजन ही नहीं बचा. करेक्ट. ठीक है. So the second one, yes. Okay, the second one is observation based question. ये बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना, केमिस्ट्री के पेपर की शान है और बाकी बच्चों के लिए गन के जैसे है कि भाई ये नहीं आया तो गड़बड़ है. बी स्पेसिफिक फॉर द ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन में यदि आपने लिख दिया व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट का कोई मतलब नहीं है. व्हाइट प्रेसिपिटेट सोल्यूबल इन पर्टिकुलर NH4OH और NaOH, इनसोल्यूबल है, सोल्यूबल है, रेड कलर है, ब्रिस्क रेड कलर है, वो उतना स्पेसिफिक आपको करना पड़ेगा. नंबर 1. नंबर 2, इफ यू आर राइटिंग द ऑब्जर्वेशन दैट कलरलेस गैस इज रिलीज्ड, ओडरलेस गैस इज रिलीज्ड, ये कैसा ऑब्जर्वेशन है? जब वो कलरलेस है तो आपका ऑब्जर्वेशन नहीं है, जब वो ओडरलेस है तो वो आपका ऑब्जर्वेशन नहीं है. इन दैट केस यू हैव टू गिव द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर गैस. फिर एक और आपको कंफर्मेटरी टेस्ट देना ही पड़ेगा. जब क्वेश्चन है राइट डाउन द रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन, वर्ड पढ़िए, रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन है. रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आपको वो रिएक्शन का ही स्पेसिफिक लिखना है. ठीक है. अभी मिल्की व्हाइट कलर तो सल्फर डाइऑक्साइड भी दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी दे देता है. अभी यदि मैंने बोला कि रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन लिखो, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अलग आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का अलग आएगा. राइट. एक वो रखना चाहिए. Okay, fine. So you have heard from our subject expert, Smita ma'am, on what you should do, how you should revise, and how you should actually prepare yourself for the examination on Monday. So all the best, Smita ma'am. Thank you very much for your time. So before leaving from this platform, I just want to say two things only. Be hydrated during the examination. Don't have a faith in chemistry, because chemistry is saying that when you are hydrated or when you add water, the concentration is loses or decreases. So here the concentration will increases if you are hydrated. And second, so with this all, God bless you and all the best for chemistry exam. Right. Thank you very much, Smita ma'am. Thank you. Thank you.